Hello, good evening, everyone. How are you? Am I audible to you now? Yes. Please let me know in the chat box. Am I audible to you? Today we are starting with the new chapter, which is the easiest one, which is nothing but statistics, right? So this chapter is important for ninth as well as it is just a base for the stat which you will study in the 10th standard. So we'll just go through this chapter. But before that, just let me know I'm audible to you now. Hello, Guna. How are you? I hope your midterms will be over, right? Are they? So you might be Diwali vacations, right? Okay. Can we start? So here we'll start with the new chapter, which is nothing but statistics. So it is a very basic concept. Yeah, questions are very easy, but first case is that T2 is done. Okay, good. And how was your paper? Good. So our question is that where have we seen statistics? When should we use them? What is the actual meaning of it? And many more things, right? So we have seen the use of statistics in our textbook and newspaper as well as on TV. The following clips are some of the examples for it. Okay, see, just like this. It means that we have state data. जो भी कुछ आपके पास है वो हमने ऑक्सीजन नाइट्रोजन अदर गैसेस आर्गन गैसेस स्प्रे में आपने लिखा है बट एज इट इज अगर आपको ये पूरा डेटा देते टेबलर में तो क्लियर नहीं होता कि आपको फाइंड आउट क्या करना है राइट ये जो आपके पास अभी फिगर है ये सिर्फ फिगर देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस द नाइट्रोजन का जो परसेंटेज मिल रहा है इट इज अ ग्रेटर वन the presence of different gases in the air is shown in the diagram here, right? So just taking a glance on this figure, you will easily get about the case. The second one is the total rainfall for different years. See, rainfall for different years has been shown. The third one is nothing but this, that is growth of a crop is shown in this diagram. So what is actually meaning of statistics? Statistics is nothing but we are just dealing with many more data. Okay, getting this one? We are just dealing with more data here. So, see, now first of all, we'll say what is statistics. Obviously, no one is going to ask you in your exam that what is the meaning of stat and when you will use it and many more things. But you must know what is the meaning of it. Statistics is nothing but collection, presentation, then analysis and conclusion of any data. See, so first of all, you will just collect all the data. Then after that, you just represent it so that you will get it easily. वे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था देखो एक केस में आपको डायग्राम का मिल रहा था सेकंड केस में आपको ग्राफ मिल रहा था तो प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट आपको जट से क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कलेक्शन में आपके पास कौन कौन सा डेटा है कौन कौन से उसके टाइप्स है एंड analysis is nothing but we just study with it so that we get the required conclusion first. So these are the four for statistics. See, suppose we just have to consider 5 examples of data that you can collect from your day-to-day life. So data is nothing but whatever is the case, whatever are the observations there, we just have to collect them so that we rise on it. First one is nothing but number of students in our class. The second one is number of fans in our school, right? That number should be integer number and we can calculate. So electricity bills for our house for last 2 years, then election result obtained from television or newspaper, or you can say that literacy rate figures obtained from the educational survey.
सो दीज आर जस्ट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेटा जो आप इजीली कर सकते हो। इस टाइप के मेनी मोर डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। Primary data is nothing but when the information is collected by the investigator himself with a definite objective in his mind. Suppose अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको कुछ लिटरेसी डेटा को फाइंड आउट करना है, लिटरेसी रेट फॉर सिटीज, सो यू कैन नॉट यूज गूगल फॉर इट। अगर आपको प्राइमरी डेटा बनाना है, प्राइमरी डेटा का मीनिंग क्या है कि जो भी कुछ आप फाइंड आउट करोगे, जो भी कुछ आपको इन्वेस्टिगेट करना है, ये आपको खुद से करना है। अब एक सिंपल केस में अगर बोला जाएगा तो यू कैन नॉट चीट और आप किसी का भी डेटा चुरा नहीं सकते। ओके, प्राइमरी डेटा इज समथिंग जो के लिए आपने फॉर्म किया होगा। सेकेंडरी डेटा इज समथिंग जिससे हम प्राइमरी बोलेंगे, जो हमने कंडीशंस की थी, वही आपका बन जाएगा सेकेंडरी डेटा। व्हेन द इंफॉर्मेशन is gathered from a source which already had the information stored this data which has been collected by someone else। मतलब किसी और ने डेटा कलेक्ट किया था एंड आप उस पे काम करने वाले, आप वो डेटा यूज करने वाले, तो वो आपका बन जाएगा सेकेंडरी डेटा। ओके, तो जो भी आपके पास है, we will just classify these examples which will be primary, which will be secondary। जो अपने आप खुद से करने वाले हो वो बन जाएगा आपका प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट नंबर, राइट। सो ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा कौन कौन सा रहेगा आपका, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, करेक्ट। सेकंड, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, यू कैन इजीली कैलकुलेट, आप कर सकते हो। थर्ड वन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ अ हाउस फॉर लास्ट 2 years, obviously वो भी डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। But you will check this that election result obtained from television or newspaper, मतलब आप सेकेंडरी सोर्स कौन सा यूज करने वाले हो, ये भी आपके पास है। सेकेंडरी लिटरेसी रेट फिगर्स obtained from the educational survey, मतलब किसी और ने सर्वे किया था, किसी और ने ये डेटा पहले से आपके पास रखा है एंड आप सिर्फ उसका यूज करने वाले हो, करेक्ट। सो if we'll just go with the secondary data, then fourth and fifth example will be example of secondary data। Are you getting this one? समझ में आ रहा है? प्राइमरी का मतलब क्या रहेगा, आप खुद से अगर आप नया डाटा कलेक्ट करने वाले हो तो। सेकेंडरी डेटा इज नथिंग बट किसी और ने पहले से वो सर्वे करके कलेक्ट किया है, यू विल जस्ट यूज इट। ओके, so here are the types of presentation of data। The first one is numerical presentation, the second one is graphical presentation, and third one is dramatic presentation। Okay, सिर्फ नाम पढ़ के भी आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में नंबर्स इंपॉर्टेंट है, सेकंड में आप कुछ ग्राफ बनाने वाले हैं, थर्ड वन इज नथिंग बट अगेन आप स्ट्रिक करने की कोशिश करोगे जो भी डायग्राम्स आपके पास रहते हैं बेस्ड ऑन इट। So numerical representation of a data is nothing but arranging the data in ascending or descending order। ओके, सपोज अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपकी क्लास से जो आपका भी टेस्ट हुआ था कि उसमें आप मैथ्स के मार्क कितने लिए मुझे बोलो, तो मैथ्स के मार्क जो भी कुछ लेंगे, सपोज देयर विल बी 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, देन आप ईच एंड एवरी वन का मैथ्स का डेटा नोट करोगे, मैथ्स के मार्क कितने थे, इतने थे, इतने थे। वो जो डेटा आपके पास है, जो आपने लिस्ट बनाया है, सपोज आप उसका कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओगे। ओके, इट विल बी अ न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। We can use ungrouped frequency distribution table here। So what is the meaning of ungrouped frequency distribution? Suppose आपके पेपर्स थे 25 मार्क्स के एंड आप क्या करने वाले थे, देयर वाज टोटल 30 स्टूडेंट, तो 30 स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स जो आपको लिखने, बट आपको ये समझ में आ गया कि यूजुअली सब जो बच्चे हैं उनको 21, 22, 23, 24, 25, हमें एज्यूम करते हैं कि सारे स्कॉलर बच्चे हैं आपके क्लास में, ठीक है। सो 21, 22, 23, 24, 25, ये जो कुछ आपके पास 5 मार्क्स है, हर एक बच्चे को इससे कोई ना कोई मार्क्स मिले। ओके, तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर वाइज आपको लिखने वाले थे। ओके, लाइक दिस, सपोज एजेस इन इट्स लाइक दिस एंड फ्रीक्वेंसी कितने टाइम का आपका रिपीट हो रहा है,
12 इयर्स के कुछ 9 बच्चे रहेंगे, 13 इयर्स के 6 बच्चे हैं, 14 इयर्स के 3 बच्चे हैं, एंड सो ऑन। गेटिंग दिस? ये बन जाएगा आपका अनग्रुप का केस। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? उस केस में ये जो फर्स्ट आप कंसीडर कर रहे थे, पिछला एग्जांपल देखा था, उस केस में ईयर के पास आपके पास सिंगल नंबर था, 13 के कितने, 14 के कितने, 15 के कितने, एंड ऑल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट जिस में आप कंसीडर करने वाले हो वहां पे आपको कुछ इंटरवल मिलेगा, वहां पे आपको कुछ ग्रुप मिलेगा। ओके, इफ दिस इज अ टाइप डेटा देन हम इसे बोलेंगे ग्रुप frequency distribution table। गेटिंग दिस वर्ड? समझ में आ रहा है ये इतना? ठीक है। देयर इज वन मोर एग्जांपल लाइक दिस। सो क्लियर क्या हो रहा है देखो आपको, दोनों भी केसेस में आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी ही मिल रही है। फ्रीक्वेंसी का तो छोड़ दो, बट जो इंटरवल कंसीडर कर रहे थे, फर्स्ट इंटरवल अगर आप चेक करोगे देन इट इज फ्रॉम 1 to 10 एंड सेकंड it's from 11 to 20 means though it is a group frequency but इस केस में फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट इज अ डिफरेंट वन। ओके, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज अ कंटिन्यूअस डेटा, बट इफ यू विल जस्ट टेक अ लुक ऑन इट, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल एंड सो ऑन, जो भी कुछ आपको प्रीसीडिंग इंटरवल का अपर लिमिट मिलता है, it is a formula for next data। Getting this one? These are two types of group frequency। Suppose आप ये consider किसी बच्चे का 10.5 है, then 10.5 आप यहाँ पे किधर पे फिट कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट इंटरवल में तो आपको 1 to 10 करना था, सेकंड इंटरवल में तो आपको 11 to 20 करना था, तो 10.5 आपको कहाँ मिलेगा? ये दिक्कत आ जाएगी ना, because it is not a continuous data, but if you will just think about this, if you will take a look at this, you can easily say that 0 to 10 है, 10 से लेस है तो फर्स्ट में जाएगा, 10 से ग्रेटर है बट 20 से लेस है देन वो सेकंड में जाएगा। लाइक समझ में आ रही है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या क्लियर हो गया? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में आपके पास सिर्फ ईयर्स थे 13, 14, 15। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में जो ईयर्स एजेस आपके पास होने वाले उसका आप इंटरवल कंसीडर करने वाले थे, and for that group frequency there will be two parts, the first one is continuous data, second one is continuous data। Okay, now the next part is that graphical presentation of the data। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नथिंग बट जो भी कुछ आपके पास रहता है उसका सिर्फ आप ग्राफ बनाने वाले, जो डेटा आपके पास रहेगा उसका सिर्फ आप ग्राफ यूज करोगे। लाइक दिस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम। समझ में आ रहा है? द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रहेगा आपका कुछ ऐसा, मतलब फर्स्ट वन में हिस्टोग्राम में आप क्या कर रहे थे, जो भी कुछ आपके पास डेटा था आप ईच एंड एवरी वो रेक्टेंगल फॉर्म करने वाले थे, बट फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अर्लियर द सिंगल लाइन, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वो सिर्फ आप जॉइन करना है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वो सिर्फ आप जॉइन करना है। गेटिंग दिस वन? इट इज अ लिटिल बिट थेरिफाइड बट समझने की कोशिश करो सो दैट क्लियर हो जाएगा। बार डायग्राम इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सिंपल बार ग्राफ। जो भी फ्रीक्वेंसीज आपके पास कुछ रहेगा उसके लिए आपको सिर्फ सीधा साधा बार बनाना है। ओके, सो फर्स्ट वन हमने क्या देखा, स्टैट का मीनिंग क्या है, उसका प्रेजेंटेशन क्या रहता है। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सम सिचुएशन लाइक फाइंडिंग लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था, राइट, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कंसीडरेशन। सो फॉर दैट व्हाट वी विल कंसीडर न्यूमेरिकल is nothing but arranging the data in ascending or descending order in which we just have to remember each and every term। आपको कोई भी टर्म, कोई भी उसमें से जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो मिस नहीं करना है, ठीक है। सो से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा व्हाट इज रेंज ऑफ डेटा। सो ऑब्वियसली रेंज इज नथिंग बट सपोज अभी दिवाली चल रही है, आप दिवाली के लिए शॉपिंग करने गए, जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो शॉपकीपर आपको पूछेगा कि आपको चाहिए क्या, आपने तो बोल दिया कि आपको कुछ ये चाहिए था। सो सेकंड थिंग वो आपको क्या पूछता है कि आपके रेंज बताओ क्या है। व्हाट डज इट मीन? रेंज इज नथिंग बट वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपका बजट क्या है, मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ये जो
आपका बजट का केस रहता है, इट इज नोन एज अ रेंज ऑफ डेटा, मीन्स लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये जो इट इज नोन एज अ रेंज ऑफ अ डेटा. ओके, रेंज ऑफ अ डेटा इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना, कम से कम कितना. दिस विल बी द रेंज ऑफ डेटा. गेटिंग दिस वन. सो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट, फर्स्ट हमने देखा था कुछ ये वाला केस. सेकंड आपने देखा था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. टेबल इज नथिंग बट आपको टेबल फॉर्म करना है. कैसे फॉर्म करोगे, यहाँ पे देखो, एजेस ऑफ सम स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड एज फॉलो, जितने बच्चे थे तथा आप सिर्फ वो नोट करते जा रहे, 13 12 13 12 13 12. सो ये जो भी कुछ आपको मिल रहा है, सिर्फ अगर देखते हो तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर वी कैन नॉट से दैट नॉट मिस्टेक, बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म आपको इंपॉर्टेंट है. 12 13 12 13 12 13 ऐसे करके आपको ये 14 आपका छूट गया, ये नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट विल डू हियर, ये जो आपके पास है विल जस्ट राइट दिस using this tabular form. So in the first column, we'll just write the heading of regarding data. तो हेडिंग के लिए आप क्या कंसीडर करोगे, देखो आपको एजेस के बारे में बता दिया था. सो फर्स्ट कॉलम पे आप पुट करोगे एजेस इन ईयर्स. सेकंड थिंग आपको क्या करोगे, टैली मार्क्स का आपको यूज करना है, मतलब कितने टाइम के लिए आपको मिलना था, कितने टाइम के लिए ईयर्स का रिपीट हो रहा था, वो सिर्फ आप टैली मार्क बनाओगे. एंड फॉर द थर्ड कॉलम, टैली मार्क मतलब ये ऐसा रहता है, करेक्ट. सो 1 2 3 4 4 कंप्लीट करोगे एंड सेट ऑफ 5 अगर आपको फॉर्म करना है, देन यू विल जस्ट क्रॉस इट यूजिंग द स्लैंट. गेटिंग दिस. टैली मार्क्स का मीनिंग क्या है, हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है. टैली मार्क्स आप यूज करते हो जस्ट यूजिंग अ लाइन, एंड सेट ऑफ 5 अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो भी नोट करने के लिए 4 लाइन लेने के बाद फिफ्थ वन आप स्टिंग लाइन कंसीडर करते. सो ये रिप्रेजेंट करता है आपका टाइम्स के लिए, कितने टाइम के लिए आप लेने वाले थे वो. एंड ये टाइम आप कंप्लीट करने के बाद एक्चुअल में जो क्वांटिटी रहती है वो हम लिखेंगे इस थर्ड कॉलम में, विच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. Are you getting this one? If they will ask you to find the ungrouped frequency distribution table, then there should be three columns. The first one is जो भी डेटा आपको दिया गया था, इस केस में एज के लिए था, इसके लिए हमने एज इन ईयर्स ऑब्वियसली जो उसका यूनिट रहता है. सपोज अगर हाइट रहेगा या फिर वेट रहेगा तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आप फर्स्ट कॉलम का हेडिंग चेंज करोगे, बट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम का हेडिंग हमेशा एज इट इज ही रहेगा. Okay, so frequency is nothing but the number of telemarks. Put here. See, for the first one, we can say that जो भी edges आपको मिल रहे थे, smallest number उसके बीच में क्या है ये आप find करो. 13, 12, 13 and so on. इस सब में smallest number क्या है? I think it is a 12. Right? जो smallest number रहेगा वो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो. Getting this one. उसके बाद आपको देखो बिगेस्ट नंबर क्या होता था, बिगेस्ट नंबर इज नथिंग बट 14. जो भी कुछ आपको यहाँ पे एजेस कंसीडर करने, या तो 12 ईयर रहेगा, 13 ईयर रहेगा, 14 ईयर रहेगा, लाइक दिस. हेंस वी हैव रिटन फर्स्ट नंबर आप कंसीडर करोगे स्मॉलेस्ट वन, देन 13, देन 14. गेटिंग दिस वन. थ्री कॉलम्स में भी देयर. फर्स्ट कॉलम का हेडिंग आप कंसीडर करोगे जो भी कुछ आपको डेटा गिवन है उस केस में. देन आपको जो तक मिल रहा था वहां पे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है चेक करना था, बिगेस्ट वैल्यू क्या है, बिगेस्ट नंबर क्या है ये चेक करना था, एंड वी जस्ट हैव टू नोट इट डाउन. आर यू डन अप टू दिस? देन वी विल चेक दैट हाउ कैन वी यूज दैट टैली मार्क्स. टैली मार्क्स इज नथिंग बट 12 आपको चेक करना है कितने टाइम के लिए मिल रहा है. See, let us draw tally marks for the given data. I can see the first one is 13. First one जो आपका 13 मिल रहा था, इसके लिए आप 13 के आगे एक लाइन बनाओगे. ये समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे लाइन लिखते हो तो वो कैंसिल कर दो, मतलब अगेन कैलकुलेशन में आप लिखोगे नहीं, वो पार्ट आपका हो गया. सो जस्ट कैंसिल इट और अंडरलाइन करो, सर्कल करो, व्हाटएवर यू कैन डू. The only case is that अगर एक बार आप उसके लिए टैली मार्क का यूज कर रहे हैं तो अगेन आपको देखना नहीं. सेकेंड है आपके पास 12. सो फॉर दैट 12 आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखा, उसके बाद ये भी कैंसिल कर दिया.
समझ में आ रहा है क्या? देखो नेक्स्ट वन इज अगेन 13, सो फॉर दैट 13 हम इधर एक और बनाएंगे एंड वो कर देंगे कैंसिल। अगेन फॉर 12, सो 12 किया इधर, वो हो गया कैंसिल। देन फॉर 13 यहाँ पे आ गया, अगेन 12, सो 12 के लिए डायलॉग्स बना। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट 14, सो 14 के लिए आप यहाँ पे एक लाइन बनाओगे। अगेन 12, then you will here getting this one। next 14 के लिए, 14 के लिए फॉर्म किया, अगेन 12। बट अब यहाँ पे देखो ये जो आपको 12 मिल रहा था इट इज द फिफ्थ वन, तो 5 का स्टेप कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास 12 नंबर है इसके लिए आप जो टाइम आपका यूज करने वाले हो, यू विल जस्ट यूज दिस स्लैंटेड लाइन, मींस फर्स्ट स्टेप हैज बीन कंप्लीट। अगर अगेन का टू लाइन था तो अगेन का वन से स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट वन इज 13, सो 13 के लिए लिखा, अगेन 12 स्टेप, सो सिंगल लाइन 13, तो 13 के 5 ऑब्जेक्ट्स 5 कंप्लीट हो गए, इसके लिए आप यहाँ पे स्लैंट लाइन यूज करोगे। अगेन 12, देन 40 एंड देन 13। ये समझ में आ रहा है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ये जो भी कुछ आपने टैली मार्कर किया क्लियर हो रहा है आपको? यस एवरीवन, आई वांट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, हाँ या ना कर सकते हो? इस टाइप का कुछ अलग क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो क्या आप इजीली सॉल्व कर पाओगे? यस यस जनारा जस्ट नाउ ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रहे हैं वी आर जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी टैली मार्क्स आर देयर। आपको ये पता होता है ये जो एक सेट रहता है जो आप स्लैंटेड लाइंस यूज कर रहे हो इट इज फॉर 5 ऑब्जर्वेशन, तो ये 5 तो कंप्लीट हो गए, 6 है इसके लिए 7 लिखा, यहाँ पे 6 मिलेंगे एंड फॉर 14 देयर आर ओनली 3। गुड, सो टोटल नंबर्स आपको कितने मिलेंगे? टोटल इज नथिंग बट जो फ्रीक्वेंसी आपके सामने वी हैव टू जस्ट ऐड देम, सो 7 plus 3 will give you 10 and 10 plus 6 will be 16। Getting this one? So we'll say that total is 16। ये जो 16 आपको मिल रहा है उतने ही नंबर ऊपर भी आपको मिलने चाहिए, मतलब आप क्रॉस चेक कैसे करोगे? ये जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रहा है जो भी आपके पास गिवन है मतलब आप जस्ट कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब जो भी हमने किया है वो करेक्ट। क्रॉस चेक कैसे करना है समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है बट सिर्फ समझना है। ओके नाउ आपको ये कैलकुलेट करना है क्या देखो आपको द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 are recorded as follows: A, B, O, A, B, and so on. Represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. तो मोस्ट कॉमन क्या रहेगा, रेयरेस्ट क्या रहेगा, ये आपको तब नहीं समझ में आना जब तक वो आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं फॉर्म करोगे, सो दैट मैक्सिमम नंबर किधर है मिनिमम नंबर किधर है आपको समझना चाहिए। ठीक है, सो जैसे हमने लास्ट केस में किया था, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है देन देयर शुड बी 3 कॉलम्स, करेक्ट? फर्स्ट कॉलम का हेडिंग आप क्या कंसीडर करोगे, जिसके बारे में आपको डेटा गिवन है, सो डेटा अबाउट दैट ब्लड ग्रुप, करेक्ट? सो फॉर दिस टेबल सबसे पहले आप ये चेक करो कि टेबल के बाद कौन कौन से ग्रुप्स आपने मिले। A is there, B is there, O is there, and B is there, right? So we can say that ये जो आप टेबल फॉर्म करोगे टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम का हेडिंग क्या रहेगा आपका, ब्लड ग्रुप के बारे में ऑब्वियसली वही पुट करोगे ब्लड ग्रुप। सेकंड आपका रहेगा टैली में आपका, थर्ड आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी। सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर? A, B, O and AB, A, B, O and AB। समझ में आ रहा है? Okay. आप सॉल्व करने की कोशिश करो क्या मिलता है देखो। ये this will be for telemark and this will be for number of students which is nothing but frequency। so telemark के लिए आप कैसे करोगे बताओ मुझे। I just want your answer that each and every blood group के number of students कितने मिलेंगे, करना। very good, good one। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब जो भी हमने किया है करेक्ट। क्रॉस चेक कैसे करना है समझ में आ रहा है?
ईच एंड एवरी टेलीमार्क के टोटल कितने मिले ये बोल। वेरी गुड। यस। सो अगर आप ये कंसिडर करते हो तो मे बी राजेश गुड, वेरी गुड। ए का 9 रहेगा, बी का शायद 6 मिलेगा आपको, एंड ओ के लिए यस, जस्ट चेक इट, करेक्ट, वेरी गुड, ओ विल बी 12। क्रॉस चेक कैसे करोगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं वो फ्रीक्वेंसी चेक करो, अगर वो टोटल आपको अगेन 30 स्टूडेंट्स मिलता है देन वी आर द करेक्ट। So there will be 9 students of type, 6 of B, 12 of O and 3 of AB. So total तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30। नेक्स्ट आपको ये पूछा था दैट मोस्ट कॉमन कौन सा है, रेयरेस्ट कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेक करोगे, जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर मिल रहा था इट विल बी द मोस्ट कॉमन वन, एंड रेयरेस्ट इज नथिंग बट जो आपको से कम टाइम पे मिल रहा है इट विल बी ओके। Then up to this, see. Again, we have one more thing here. So three coins were tossed 30 times. Each time the number of heads occurring was noted down. So या तो zero time consider कर सकते हो या फिर 1 time, 2 time, 3 time. Just do it fast and tell me what will be your answer. 0, 1, 2, 3 के लिए टोटल कितने मिलते। Yes. 0 times k. Good. Okay. Say that का हो गया, then 3 के लिए 3 पे किया 0, then again 1 3 1 1 2 2, correct, very good. So I can say that 0 सबको मिलने वाला है, 0 के लिए शायद आपको 6 मिलेगी फ्रीक्वेंसी। गुड राजेश, वेरी गुड। देन 1 के लिए 10 टाइम्स 2 आपको मिल रहा था, 2 टाइम्स सेट आपको कुछ मिल रहे थे, 9 टाइम्स मिले एंड 3 इज ओनली फॉर 5। सो अगर आप ये टोटल चेक करते हो देन इट विल गिव यू आंसर एज अ 30। इट मींस दैट जो 30 टाइम्स के लिए आप कर रहे थे वो आपको करेक्ट मिलता है। गेटिंग दिस वन, क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, ये टाइप समझ में आ गया आपको। ओके, so now we'll just consider another type of question based on this. Okay. Next question is, next type is nothing but grouped frequency data. फर्स्ट टाइप हमने क्या किया था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तब आप वो कॉलम फॉर्म करने वाले थे, तो देयर विल बी टोटल 3 कॉलम, फर्स्ट का हेडिंग, सेकंड पे टेलीमार्क, थर्ड के लिए आप फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली वो सेम टाइप का यूज आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी आप टेबल ही फॉर्म करोगे, बट जो भी आपको वो इंटरवल कंसिडर करने होंगे जो आप फर्स्ट कॉलम में ले रहे हो वो आपको ग्रुप 12 कंसिडर करना होगा। सी इन द फर्स्ट कॉलम आप जो डेट के लिए इंटरवल बोलोगे बेस्ड ऑन इट कंसिडर करोगे, क्लास मार्क ऑफ 10 जो भी आपको मिलेंगे, सेकेंड के लिए अगेन 10 मार्क, थर्ड विल बी द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो सपोज क्लास मार्क्स जो आपको मिलने वाले थे तो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 ऐसे कुछ रहेंगे। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाएगा सो बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन आप चेक करोगे कि अगर आपको 3 मिलता था, कैलकुलेशन मतलब जो मार्क्स को मिल रहे थे वो अगर 3 मार्क्स में डेफिनेटली यू विल पुट इट फॉर 1 to 10, राइट। अगर आपको 9 मार्क्स मिल रहा है देन यू विल पुट इट इन द फर्स्ट वन। सपोज 24 आपको मिल रहा है देन 24 आपको लिखना होगा फॉर थर्ड, लाइक दिस। ओके, सो एवरी क्लास
has its own lower limit and its own upper limit. ये जो 3 क्लासेस आपको मिल रहे थे सबको लोअर लिमिट रहेगा, अपर लिमिट का केस रहेगा. लोअर लिमिट इज नथिंग बट मिनिमम वैल्यू, अपर लिमिट इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू. अगर फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट एंड सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट आपको सेम मिलता है तब आप उसे बोलोगे कंटिन्यूअस क्लास. इस केस में आपको फर्स्ट क्लास का अपर को कुछ टाइम मिल रहा था. फॉर सेकेंड क्लास लोअर लिमिट इज 11 means here 10 and 11 are not same. Hence we'll say that the classes are called as a discontinuous classes. The classes are called as a discontinuous classes. And अगर वो सेम रहते हैं तो उसे आप बोलोगे continuous classes like this. Again same class mark obtained. Next आप consider करेंगे tally marks. Next will be the frequency. तो यहाँ पे चेक करो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. First class का upper limit is same as lower limit for the second class. Upper limit for the second class is same as lower limit for the third class and like this. So यहाँ पे lower limit upper limit जो आपको मिल रहे थे अगर आप ये exact way चेक करोगे then वो आपको same मिल रहे थे. Hence we'll call these classes are continuous classes. The classes are called continuous classes. Again जो आपका otherwise tally mark वाला ये तो आपका as it is same ही रहेगा. See, we have this one. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows: 5, 30, 10, 20, and many more. Construct a group frequency distribution with class size 5 for the given above. Class size 5 है मतलब each and every interval में आप 5 measure करोगे. Taking first class interval as a 0 to 5 where 5 is not included. 5 is not included मतलब 5 जाना चाहिए. Then what main features do you observe from this tabular representation? फर्स्ट क्लास इंटरवल अगर आप 0 to 5 कंसीडर करना चाहते हो एंड सिंस 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट क्लास इट मींस दैट 5 के लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा. अगेन सेकेंड क्लास आपको लेना पड़ेगा. सेकेंड इंटरवल का भी स्टार्टिंग आपको 5 से करना होगा. इट मींस दैट फर्स्ट के लिए अपर लिमिट विल बी द फॉर लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास. सो ये बन जाएंगे आपके कंटिन्यूअस क्लासेस. सो कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए फर्स्ट इंटरवल आपके पास है. क्लास विड्थ आपको 5 दिया गया था तो उन्होंने क्या बोला है देखो यहाँ पे विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा. सो जो भी क्लास इंटरवल आप कंसीडर करोगे इट विल बी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन. ओके सो सबसे लास्ट वाला पॉइंट ग्रेटेस्ट वाला आपको मिल रहा था 32. अगर 32 आपको लेना है तो इस फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे करते 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 आपको 30 to 35 टर्म्स तक कंसीडर करना होगा. गेटिंग दिस वन. सो स्टार्ट करते हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट वन आपको डिस्टेंस के बारे में बोला था. सो डिस्टेंस इन किलोमीटर, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट इंटरवल आप कंसीडर करोगे 0 to 5. हेलो. सेकेंड आप कंसीडर करोगे 5 to 10 बिकॉज 5 ये रहेगा आपका क्लास साइज भी आपको पता था 0 to 5, 5 to 10. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये कंटिन्यूअस रहने वाला है. ये पहले से आपको पता है. तो जो भी आपका 5 का टेबल रहेगा जस्ट नोट इट डाउन 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे एज्यूम करो. बेस्ड ऑन इट सबसे पहले ये सारे इंटरवल्स लिखो. और हमने ये ऑब्जर्व किया था कि आपको मैक्सिमम जो क्वांटिटी मिलने वाली थी वो 32 है. अगर 32 बिलोंग होना चाहिए तो लास्ट क्लास आप कंसीडर करोगे फ्रॉम 30 to 35. ओके अदरवाइज जो टैली मार्क हम कंसीडर कर रहे थे वो तो पूरा आपका क्लास सेम ही रहने वाला है. 5 आप पुट करोगे तो 5 आ जाएगा. ऑब्वियसली यहाँ पे सेकेंड क्लास पे क्यों बिकॉज क्लियरली आपको ये बोला गया था दैट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 where 5 is not included, where 5 is not included. Getting this? मतलब अगर 5 रहता है तो आपको वो सेकेंड इंटरवल में लिखना चाहिए. सो द नेक्स्ट वन इज 3. 3 अगेन जाएगा आपका 0 to 5 में. 10 इज देयर तो 10 जैसे 5
इट मीन दैट, मीनिंग क्या है, जो आपका अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट आप उस पर इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, सो वी कैन टेक दैट 10 अगर आपको पुट करना है तो आपको थर्ड इंटरवल में करना होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? जो आपके पास 0 to 5 का केस होने वाला था, 5 अगर आपके पास अपर लिमिट पर रहता है तो आपको नहीं कंसिडर करना है, इसके लिए लोअर लिमिट पे आप चेक करो। नेक्स्ट वन विल बी 20, 20 के लिए भी ग्रेटेस्ट वन यूज है। ओके, देन 11, 13, 7 आप लिखोगे 5 to 10 में, इसके लिए यहाँ 10 मार्क दिया। नेक्स्ट वन इज 12, सो इट इज अगेन फ्रॉम 10 to 15। देन 31, सो आपको 30 to 35 में लिखना है। नेक्स्ट वन इज 19, सो विल जस्ट द tally mark here, और 15 to 20। देन 10, सो फोर्थ है पहले से कंप्लीटेड। ये आपको फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन मिला है, आपको ये पता है टैली मार्क का जो आपके 5 के ग्रुप्स रहेंगे वो आप गैदर सेट ऑफ 5। तो फिफ्थ वन जो आपका लाइन रहेगा आपको ऐसे स्लैंटेड राइट। देन 12, सो अगेन यहाँ पे आ गया 17, 18, नेक्स्ट वन इज 11, देन 32 is there, next one is 17, then 16, next one is 2, तो आप यहाँ पे करोगे। then 7, 9, 9 will go to again the second class, so 7 will be again for the second class। next one is 8, again आप second class में करोगे, but 3 first रन में गया। 5 again आप second इंटरवल में कंसीडर किया था। 12, 15, then 18 के लिए किया, फिर again 3, then 12, 14। I hope you are getting this one। बहुत ही इजी है, बट बहुत ज्यादा चांसेस थे आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिली मिस्टेक हो सकता है, तो अच्छे से ध्यान देके करो। ओके, देन 6, 15, again one more time 15, then 7, 6 and last one is 12। so आप यहाँ पे पुट करोगे एज अ 12। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, ये जो आपके सारे 10 मार्क्स हो गए कंप्लीट, तो सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट केस में आपको मिल रहा था 5, सेकेंड पे मिल रहा था आपको 10, सॉरी माय बैड 11, देन थर्ड वन में अगेन 10 plus 10 plus 1, so again 11। For 20 to 25 there is only one telemark, for 25 to 30 again there is only one telemark, and for 30 to 35 there will be two telemarks। so ये बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। लास्ट केस आपका क्या है, आपको टोटल फाइंड आउट करना है। अगर गिवन केस में आपके पास रहता है दैट देयर आर 40 इंजीनियर्स, इट मींस दैट इस सब का टोटल आपको 40 मिलना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आपको पूछा गया था व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मिनिमम कब रहेगा, मैक्सिमम कब रहेगा, ये आपको करना है चेक। सो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स डिसाइड्स इन द रेंज ऑफ लेस देन 20 किलोमीटर्स। अगर जैसे आप ये देखते हो 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, इसके लिए आपको बहुत कम मिलेगा। ओके, so most of the engineers resides in the range of less than 20 kilometers। okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है खुद से, do it। see, there is some observation which are in point, but कोई दिक्कत है भी नहीं। आपको क्या दिया था, relative humidity in percentage of a certain city for a month for 30 days was as follows। so you have to construct a group frequency distribution जिसके क्लासेस आपको पहले से दिए हुए हैं, 84 to 86, 86 to 88 and so on। तो इसके लिए आप चेक क्या करोगे, कम से कम वैल्यू क्या मिल रहा था आपको, अगर वो 84 के बारे में दे रहे हैं तो वही आप चेक कर सकते हो। मिनिमम आपको क्या मिलता है चेक करो यहाँ पे, मिनिमम इज नथिंग बट 84.9 एंड मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, आई थिंक मैक्सिमम इज 98, राइट। yes, maximum is 98 point something। it means that ये ऐसे आगे करते 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 आपको 98 to something ये भी ले। since the classes are given like this, so obviously ये continuous मिलते हैं because first class का upper limit is same as your limit for the second class। yes Kana, the maximum is 99.2, good, very good।
इट मीन्स दैट लास्ट जो आपको मिल चाहिए, लास्ट क्लास विल बी 98 to 100. आपको अभी खुद से करना है. यू हैव 2 minutes फॉर इट. डू टाइम आप कंसीडर करो. फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? 84 to 86, 86 to 88 and so on. लास्ट वाला आपका रहेगा 98 to 100. Try to solve it. Then we'll check. क्या मिलता है चेक. राजस एक और बार चेक करो. Because I can see there is a observation 84.9. So 84.9 आपको प्रूव करना पड़ेगा. आदित्य सेम 84.6 में ये पॉइंट ऑफ डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए हम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज 98.1. सो 98.1 जाएगा आपका सबसे लास्ट क्लास. देन मिलता है आपको 98.6. सो अगेन वो भी जाएगा लास्ट क्लास में. राजेश गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज फोर्थ आपको मिलता है 90.3. सो 90 पॉइंट समथिंग मतलब 90 to 94 के लिए आपको लिखना है. गना वेरी गुड. देन 95.3 अगेन आप लिखोगे यहाँ पे 94 to 96 के लिए. देन 92.9. सो वो बन जाएगा आपका इधर 96.3 आप लिखोगे 96 to 98 में. देन 94.2, 95.1, 89.2, 92.3, 97.1, 93.5. Next one is 92.7 and so on. देखो ऐसे सारे आपको मिल जाएंगे. 95.2 इज नथिंग बट जाएगा यहाँ पे 97 पॉइंट समथिंग सेकेंड लास्ट ये मिला. 92.1 will be here. For this 84.9 we have to consider one tally mark for the first group. Okay, good. Then again 90.2 ये ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा. So I am getting the corresponding frequencies. First class के लिए आपको frequency मिलेगी 1. For second one again there will be 1. Third, fourth के लिए आपको 2 मिलेगा. For this one 5 plus 2 which is nothing but 7. For next 5 plus 1. Then 5 plus 2 and 2. So if you calculate this one, its summation should be 30 because we are considering the observation of 30 days, right? So total अगर आपको 30 मिल रहा है, it means that we are doing the right. Getting this one बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है. बट जैसे मैंने आपको बोला, जैसे अभी आपका हुआ ना कि आपको ऐसा लग रहा था फर्स्ट में कोई भी नहीं जाएगा, ये नहीं. ठीक है, अच्छे से देखो, लर्न करो. सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज सारे ऑब्जर्वेशन आपको सेम ही दिखाई देते हैं इसके लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच मंथ और सीजन डू यू थिंक this data is above. Which month or season do you think this data is above? ये जो भी कुछ आपको दिया गया है ये ह्यूमिडिटी के बारे में था, राइट? अगर ह्यूमिडिटी के बारे में है तो आपको क्या मिल रहा है? देखो, the data appears to be taken in the rainy season because ये जो आपको मिल रहा था यहाँ पे 92 to 100 तक आपको बहुत ज्यादा डेटा मिल रहा है, करेक्ट? It means that relative humidity is high and relative humidity high तो कैसी है आपकी rainy season. Now next one is what is the range of data. हमने सबसे फर्स्ट पार्ट में ये किया था. देखो, what is range? Range is nothing but जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम वैल्यू रहेगी, उसके बीच का आपको डिफरेंस कंसीडर करना है. सो व्हाट इज द रेंज? ये जिस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये चेक करना है कि आपका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू?
व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू आपको कुछ मिल रहा था 99.2 एंड मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा था 94.9, sorry 84.9. So we'll just consider the difference between these two numbers. You just have to consider the difference between these two calculations. Done? Okay. I think ये आप कर सकते हो, क्या देखो? You just want, then just take a screenshot of it and try to solve this as a homework. सेम आपको यहाँ पे भी क्लियरली आपको बोला गया था कि क्लास इंटरवल्स क्या रहेंगे 160 टू 165, 165 टू 170 एंड ऑल। तो आपको सिर्फ ये चेक करना था कि मैक्सिमम आपको क्या मिलती है हाइट, जो भी आपको सेंटीमीटर में गिवन है। आई थिंक 172 विल बी द मैक्सिमम। यस, तो अगर 172 आपका मैक्सिमम रहेगा तो बेस्ड ऑन इट आप वो क्लासेस कंसीडर करोगे, राइट? 173, सॉरी दैट इज 173। सो हाइट सब कंसीडर कैसे करोगे? आपको लेना था 160 टू 165 एंड अगेन आगे एंड सो ऑन। देखो मिनिमम आपको क्या मिलना था, मिनिमम नथिंग बट 150 मींस ये जो आपको कंसीडर ने थे इंटरवल, वो सिर्फ आपको आइडिया जाए मतलब आप क्लास साइज क्या लेने वाले हो उसके लिए गिवन था। बट आप चेक क्या करेंगे जब भी आपको इस टाइप से मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको फॉर्म करना है तो आपको मिनिमम चेक करनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी होगी। सो मिनिमम हाइट इज नथिंग बट 150, मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट 173। सो 150 था मिनिमम, इसके लिए आप 150 से स्टार्ट करोगे जिसका क्लास साइज रहेगा 5। 150 155 155 to 160 160 to 165 165 to 170 170 to 175, this will be the class intervals. ओके, गेटिंग दिस वन? समझ में आ रहा है ये क्या करना चाहिए, ये क्लियर हो रहा है आपको? ओके, नाउ we'll just go through the next part. Here we have the next question. Okay, yes, we have just try to solve the last question of this type. 48 oranges are picked up at a random from a basket. Their weights in grams are recorded as follows: 120, 125 and so on ऐसे कुछ आपके पास है। Given things क्या है देखो, prepare a group frequency distribution table by taking suitable classes of width 10 grams। मतलब जो आपको क्लास width कंसीडर करनी है it should be 10 grams and mid value of first class correspond to 115 grams। आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम ये क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना देखो, मिड वैल्यू ऑफ प्लस गिवन था एंड क्लासेस ऑफ विड्थ 10 ग्राम्स आपको कंसीडर करना। मतलब जो भी आपके पास क्लासेस रहेंगे उस केस में आप क्या कंसीडर कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आपका रहेगा इट्स वैल्यू शुड बी 10 एंड गिवन कंडीशन मिड वैल्यू शुड बी 115। सो आप प्रिपेयर कैसे करोगे देखो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो सबसे पहले वेट्स ऑफ ऑरेंजेस ऐसा कुछ रहेगा, क्लास इंटरवल्स will based on weights, second column will be for telemark and third one is for frequency. So what is the class width is given as a 10, it means that अगर आपको वैल्यू कंसीडर करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो देखो, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन बी कंसीडर्ड। अगर क्लास में रहता है आपका 10 एंड मिड वैल्यू आपको दिया गया है एज 115, देन लोअर लिमिट इज नथिंग बट मिड वैल्यू माइनस ऑफ क्लास विड्थ अपॉन 2, बिकॉज आपको सिर्फ मिडिल वैल्यू क्या रहेगा ये फाइंड आउट करना है। अगर क्लास विड्थ रहता है 10 देन वी विल कंसीडर जस्ट 10/2। ये जो आपका 5 आंसर आता है ये आप मिड वैल्यू से करोगे माइनस सो दैट यू विल गेट लोअर लिमिट। सिमिलरली अगर आपको अपर लिमिट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो आपके पास मिड वैल्यू रहेगा मिड वैल्यू में आप क्लास विड्थ अपॉन 2
ये वैल्यू करोगे ऐड, वही तो आपका मीनिंग रहता है ना मिड वैल्यू का, करेक्ट। सो नाउ आपको ये चेक करना था, फर्स्ट आपको तो क्लास इंटरवल मिल गया जिसका लोअर लिमिट रहना चाहिए 110 एंड अपर लिमिट शुड बी 120। सो द नेक्स्ट केस इज दैट आपको कहाँ तक ये करना था, इसके लिए आपको मैक्सिमम वेट क्या है ये चेक करना है। आई थिंक मैक्सिमम वेट मुझे तो मिल रहा था, देखो 158। आर यू एबल टू सी अनदर वन? तो जो आपका ये मैक्सिमम वेट रहेगा, मैक्सिमम वेट केस में आपको करना चाहिए, सो विल जस्ट प्रिपेयर द क्लासेस एट 110 to 120, 120 to 130 एंड सो ऑन। लास्ट वन कैसा चाहिए, ये 158 इंक्लूड करना चाहिए, सो विल कंसीडर इट अप टू 150 to 160 लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? देखो, सो आई थिंक रेस्ट पार्ट आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहले आप चेक करोगे 120 के लिए, सो 120 अगर आपको लिखना है तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो ग्रेटर वाला रहता है, फर्स्ट केस में हमने किया था करेक्ट राइट, उस केस से आप चेक करोगे 120 आप करोगे क्लास मार्क यहाँ पे। सेकेंड है आपके पास 125, सो 125 के लिए अगेन आपको सेकेंड क्लास पे करना होगा, अगेन देयर विल बी 110 जो आप फर्स्ट पे करोगे। समझ में आ रहा है? करके बताओ क्या रहेगा आंसर। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ क्लास के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी ये मुझे बोलो। 115 तो मैंने लिखा था, सो नेक्स्ट वन इज 128, 150, 135। मुझे जो मिल रहा है यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर विद दिस। टोटल आपको 48 मिलने वाले थे, मतलब जो फ्रीक्वेंसी से आप कंसीडर करोगे, जो टैली मार्क्स आप बनाने वाले हो वहां पे टोटल 48 नंबर आपको मिलना चाहिए। लास्ट वन इज नथिंग बट 150 जो आप करोगे यहाँ पे। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो, मुझे तो मिल रहा था फर्स्ट क्लास के लिए 3 टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 3। आपको क्या मिल रहा है चेक करो, आपको भी सेम ही मिल रहा है क्या? सेकेंड के लिए क्या मिलेगा आपको? वेरी, सो जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट। अगर ये 48 आपको मिलता है, इट मींस दैट आपने जो भी कुछ किया है वो करेक्ट किया है। सो 3 plus 10 plus 11 plus 15 plus 9 which is nothing but summation of all n। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है we will read it as summation sign। so capital N is nothing but number of observation which is equal to summation of frequencies। ये जितने भी frequencies आपको मिल रहे थे we just have to equate them। So now we just go with the next part, which is nothing but bar diagram। How can we form that bar diagram? Graphic ये आप लोग कैसे नोट कर सकते हो and all things। So given below are the seats won by the different political parties in the polling outcome of the state assembly elections। ये कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। देखो इस टाइप का ग्राफ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी आपको बताया गया था ABCDEF, इट मींस दैट देयर विल बी टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टीज एंड सीट्स वन। सो रिस्पेक्टिव जो भी आपको मिल रहे थे इसके लिए पोल वो आपके पास गिवन है, रिस्पेक्टिव जो विनिंग सीट्स है वो आपके पास गिवन है। हमेशा ये याद रखना जब भी आपको या तो हिस्टोग्राम बनाना होगा या फिर बार डायग्राम बनाना होगा, हमेशा जो आपके पास रहते हैं ऑब्जर्वेशन वो आप एक्स एक्सिस पे डिनोट करोगे एंड जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिलती है वो हमेशा आप वाई एक्सिस पे डिनोट करोगे। ओके, सो इन द ग्राफ drawn political party is denoted on the x axis and the number of seats one will be for the y axis।
सो व्हेनेवर देयर विल बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब भी आप ग्राफ फॉर्म करते हो, ग्राफ के लिए आपको स्केल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्केल इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 शीट्स, ये हमने कंसीडर किया था, ये आपका ऑब्वियसली हमेशा रहता है 0 का। सो शीट्स 1 ऑन वाई एक्सिस, ये आप लिखने वाले थे। कम से कम ज्यादा से ज्यादा नंबर चेक करो, बेस्ड ऑन इट आप ये देखो कि आपको क्या लिखना है। आर यू गेटिंग दिस वन? सी, हमने यहाँ पे 10 20 30 अप टू 80 किया, बिकॉज जो मिनिमम सीट्स आपको मिल रहे थे फॉर 10 एंड मैक्सिमम कुछ आपको मिल रहा था 75, ये बन जाएगा आपका y। आप कंसीडर करने वाले थे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस, सो 1 सेंटीमीटर मतलब अगर 10 सीट्स आपके रहते हैं तो 10 बॉक्सेस का मतलब 10 सीट बन जाएगा। सो ये जो छोटू सा आपका बॉक्स रहता है, इट विल बी फॉर 1 सीट, राइट, इट विल बी फॉर 1 सीट। सो सॉलिड आप फाइंड आउट करोगे। ए के लिए आपको 75 प्लॉट करना था, तो वी नो दैट 75 इज नथिंग बट समवेयर एग्जैक्टली बिटवीन 70 टू 80, राइट। अगर आपको 75 करना है प्लॉट, तो आप क्या करोगे, 5 ऑफ दिस पर 5 6, मतलब 70 तो हो गया। 70 टू 80 के लिए ये जो आपको मिडल पॉइंट मिलेगा, ये वाला केस। आर यू गेटिंग दिस वन? समझ में आ रहा है ये आपको? क्लियर हो रहा है? सो दिस विल बी फॉर ए। ए के लिए आप सब कुछ फॉर्म करोगे, सो वी जस्ट हैव टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, जिसके लिए इस साइड से आपको समझ पा जाएगा कि 75 पुट करना था। ये जो आपको मिलता है, इससे स्टार्ट करोगे अप टू 75। नेक्स्ट वन आपको बी के लिए फाइंड आउट करना है, बी के लिए कुछ 55 रहेगा, बट वी नो दैट 55 इज नथिंग बट एग्जैक्टली बिटवीन 50 टू 60, 50 टू 60 के बीच में ये जो आपकी लाइन रहेगी, इट विल बी फॉर 55। सो 55 के लिए आपको ये पॉइंट देना होगा। हम क्या करें, देखो, चाहो तो 1 सेंटीमीटर छोड़ो या फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ो, बट जैसे आप ए टू बी के लिए छोड़ रहे हैं, उतना ही हमने ओरिजिन टू ए के लिए छोड़ा था। ओके, सो स्टिकल दिखाई देगा, क्लियर चल जाएगा, इसके से आप करोगे। नेक्स्ट वन इज 37। तो 37 आप कैसे प्लॉट करोगे? 37 विल बी बिटवीन 30 टू 40। अगर आप ग्राफ पेपर चेक करते हो, तो ये जो आपको कलर स्क्वायर्स मिल रहे हैं, 30 टू 40 के बीच में देयर विल बी टोटल 10 स्क्वायर्स। अगर आपको 37 करना है, मतलब 35 के आगे दो आपको करने हैं प्लॉट। फॉर डी 29, फॉर ई आप पुट करोगे 10, and for F there will be again 37. That's it. It is the graph of bar, or we can say that it will be your bar graph to represent the given this, to represent the given data. Then समझ में आ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, जो एक्स एक्सिस पे आप लिखने वाले हो उसका हेडिंग आपको देना है। सेम फॉर जो वाई एक्सिस पे आप कंसीडर करने वाले हैं, वो भी आपको लिखना है। थर्ड इम्पोर्टेंट केस रहेगा जो स्केल आप कंसीडर करने वाले हो, वो वाला केस। नेक्स्ट वन सी। अब आपको क्या मिल रहा है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। जो भी आपको दिए थे, ये इन सब परसेंटेज आपको दिए थे। देयर आर टोटल 6 डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस। तो जो कॉजेस आपके रहेंगे वो आप एक्स एक्सिस पे डिनोट करोगे, एंड जो कई रेट मिल रहा था वो आप डिनोट करोगे ऑन द वाई एक्सिस। गेटिंग दिस वन? जो भी कुछ मिल रहा था 4.1, ज्यादा से ज्यादा आपको 31.8 मिल रहा है, वो भी आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिल रहा है। तो पॉइंट वाले वैल्यूज आपको प्लॉट करने, इसके लिए हम स्केल थोड़ा क्या कर रहे हैं। मतलब इस केस में हम क्या लेंगे, दैट 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट ओनली 2 यूनिट्स। अगर आपको यहाँ पे करना है 31.8, तो आप चेक क्या करोगे, देखो 31.8 के लिए आप बोल सकते हो 31 रहेगा आपका इन बिटवीन दिस 0.8, मतलब अगेन आपको जाना होगा 4 पॉइंट्स आगे। 1 सेंटीमीटर अगर आपका पास 2 यूनिट रहता है, तो यहाँ पे चेक करना है आपको। ये समझ में आ रहा है?
अगर आपको 31.8 चाहिए तो 31.8 2 यूनिट्स के यहाँ पे चेक करो, so you will easily get value of this. वन बॉक्स का आपका वैल्यू क्या रहेगा 0.2 यूनिट्स। तो अगर 31.8 करना है तो 30 एंड 32 के बीच में ही करना है, बट 0.8 आप कैसे करोगे 30 के आगे 6 राइट। सो ये रहेगा आपका फर्स्ट paragraph for first reason, that is reproductive health condition. Similarly, second के लिए आपको 25.4 करना है, तो देखते हैं 25.4 के लिए obviously 24 to 26 के बीच में ही रहेगा, जो exactly middle value आपकी रहेगी like this. Sorry, yes, this will be for 25, but we have to put 24.4. तो सिंगल जो आपकी लाइन में इट इज फॉर 0.2, अगर आपको आगे जाना है 0.4 से देन वी जस्ट हैव टू गो वर्ड विथ यूजिंग टू लाइंस ओनली। ओके, सो दिस विल बी फॉर 24 25.4। नेक्स्ट वन अगेन 12.4 के लिए सेम करोगे, 12 तक तो आपको जाना ही था, आगे जाना है सिर्फ 0.4 से। अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब 2 यूनिट्स रहता है, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर में ये जो छोटे 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 आपको लाइन मिल रहे हैं देयर विल बी टोटल 10 लाइंस। 1 सेंटीमीटर का अगर आपका रीजन रहता है 2 यूनिट का, तो फिर वन लाइन आपको क्या देगा 0.2। गेटिंग दिस वन। सो आपका जो ग्राफ रहेगा ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। गेटिंग दिस वन। यस। सो आपको ये फाइंड आउट होना था विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड। मतलब ग्राफ पे आपको क्या चेक करना है, जिसका भी आपको हाइट सबसे ज्यादा मिलेगा वो रहेगा आपका आंसर। अगर आप चेक करते हो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हाइट आपको क्या मिल रही थी, फर्स्ट रीजन विच इज नथिंग बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, राइट। सो इट्स आंसर विल बी द बार which has the highest. So reason will be reproductive health condition is the major cause of women's ill health and death worldwide. Getting this one, ये समझ में आ रहा है क्या बोलो? Okay. Now next one. डायरेक्टली जंप करेंगे नेक्स्ट टाइप पे, बिकॉज आई थिंक ये ग्राफ वाले जो भी कुछ केसेस है आप कर सकते हो, राइट। समझ में आ रहा है ना? द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज आप स्केल कौन सी लेने वाले हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप कंसीडर क्या करने वाले हो। सो नेक्स्ट वन इज दिस। दिस इज द नेक्स्ट। जो भी फर्स्ट हमने देखा ना इट इज जस्ट रिगार्डिंग टू आपका डेटा टाइप ऑफ कलेक्शन क्या रहेगा या फिर आपको रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हो बेस्ड ऑन। सो नाउ सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे दैट मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब आपको क्या पता था स्टैट इज नथिंग बट जो भी कुछ डेटा आपके पास रहता है वो सब आप सबसे पहले करोगे कलेक्ट, देन वो आप रिप्रेजेंट करोगे, देन आप एनालाइज करोगे एंड उसके बाद कंक्लूजन देखोगे। तो जब भी फर्स्ट दो पॉइंट हमने फर्स्ट कलेक्शन तो प्राइमरी डेटा क्या रहता है, सेकेंडरी डेटा क्या रहता है, ये हमने देखा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के टाइप हमने देखे थे। नाउ आप चेक करोगे कि उसका एनालिसिस आप कैसे करोगे, मतलब जो भी कुछ आपके पास रहता है डेटा यूजिंग इट आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीनिंग क्या है एंड यूज कैसे करते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है पूरा जो आपका डेटा रहेगा वो पूरा एनालाइज करने के लिए। सपोज देयर विल बी टोटल 100 ऑब्जर्वेशन बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम
आप ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन चेक नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको क्या करना है, जस्ट टेकिंग अ ग्लांस ऑन दैट ऑब्जर्वेशन, आपको कुछ मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या रहेगा, इन एन एवरेज आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, या फिर ऐसा आपका कौन सा व्यू है, ऐसा आपका कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहता है। ये जो 3 पॉइंट हम बोल रहे थे, ये आपको करने पड़ते हैं कंसिडर, व्हिच इज नथिंग बट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मीन, जो आपने कई बार यूज किया है फॉर फाइंडिंग आउट एवरेज मार्क्स ऑफ सेल। द सेकेंड वन इज नथिंग बट मीडियन। मीडियन के नाम पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ मीडियम का रहता है। सो मिडल मोस्ट वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी तो आपको मीडियन का यूज करना है। एंड थर्ड केस इज दैट मोड। मोड इज नथिंग बट ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देता है, द ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर हो रहा है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट हम पूरा ऑब्जर्वेशन का ईच एंड एवरी का डेटा रहेगा वो हम स्टडी नहीं करने वाले, बट जस्ट टेकिंग अ ग्लांस ऑन इट आपको ये समझना है कि एवरेज वैल्यू क्या आपको मिल रहा था, मिडल मोस्ट वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, and what is the value of highest frequency. Getting this one, ये समझ में आ रहा है। जिस टाइप का आपने डेटा देखा था, मतलब सबसे पहले आप क्या करने वाले थे, जो आपने ग्रुप कंसिडर किया था, ग्रुप में आपको क्या मिल रहा था, फिर जो भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है वो आप एज इट इज लिखने वाले थे, जिसे हम बोलते हैं या तो रॉ डेटा या डिस्क्रीट डेटा। रॉ डेटा मतलब जो आपके पास रहेंगे वो सिर्फ लिस्टिंग मेथड में करने वाले थे। सेकेंड आपको मिलेगा अनग्रुप्ड डेटा एंड थर्ड वन विल बी द ग्रुप्ड डेटा। कंटिन्यूस रहता है तो क्या है, इंटरवल कंसीडर करते हो तो क्या करना है। सो ये जो आपके पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ डेटा रहता है, ईच एंड एवरी टाइप के लिए मीन कैसे फाइंड आउट करना है, मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, मोड कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप फाइंड करोगे। ओके, सो इन टुडेज सेशन विल स्टार्ट विद द मीन, एंड जो हमारा सैटरडे का लेक्चर रहने वाला है तब हम मीडियन एंड मोड के बारे में देखेंगे। Maybe next lecture पे आपका ये chapter completely हो जाएगा. Okay. So first one is mean, which is nothing but arithmetic average. Median is nothing but halfway point, that is middlemost point. And mode is nothing but most common answer. मतलब जिसकी frequency आपको highest मिलेगी वो. So today we start with the mean. Mean is nothing but arithmetic average. दैट इज जितने भी आपके पास रहते हैं ऑब्जर्वेशन, उन सब ऑब्जर्वेशन के लिए अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, देन व्हाट यू विल कंसीडर दैट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे हमने आपको बोला, मे बी आपने कई बार किया भी होगा दैट फाइंडिंग आउट व्हाट विल योर एवरेज, ठीक है, एग्जाम। सो जितने आपके पेपर्स लगते हैं, ईच एंड एवरी पेपर में आपको जो मार्क्स मिले हैं, जो मार्क्स ऑब्टेंड है, आप उसका टोटल करोगे एंड जस्ट डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ पेपर्स। सो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो 5, 10, 15, 50 ऐसा कुछ मिल रहा है। न्यूमरेटर पे आपको कंसीडर करना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5 प्लस 50, 10 प्लस 15 प्लस 50, करेक्ट, एंड जस्ट डिवाइड इट बाय 4। आप बोलोगे मुझे आंसर क्या रहेगा इसका, कैलसी का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। यस, व्हाट विल बी इट्स आंसर। ऊपर तो आपने क्या किया, जितने ऑब्जर्वेशंस थे सबका टोटल किया है एंड जस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो देयर आर ओनली 1 2 3 4, सो देयर आर टोटल 4 ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी इट्स आंसर? 80 अपॉन 4 क्या रहेगा आंसर? करेक्ट, वेरी गुड धना, वेरी गुड। सो इट्स आंसर विल बी 20। जो ये फर्स्ट आपको मिल रहा था ना, मतलब ये जो हम पॉइंट्स, ये जो आप ऑब्जर्वेशन कंसीडर करते हैं, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन आप अलग अलग से ले रहे हो। ओके, नाउ यू हैव दिस ऑब्जर्वेशन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट विल बी इट्स मीन। let me that how many observations are there? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर पे जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो एज इट इज लोगे and just divide it by mean is also denoted as a x bar, which is nothing but numerator पे आप consider करोगे addition of all observation, sum of all observation,
and just divide it by total number of observation, that is 1, 2, 3, 4 and so on up to 6. So न्यूमरेटर रहेगा आपका 87 plus 92 plus 63 plus 78 plus 92 एंड सो ऑन। उसके बाद आपको डिवाइड करना है। सो डोंट फॉरगेट दैट जो न्यूमरेटर आपके पास है वहां पे प्लस साइन है, इसके लिए आप 8 1 जा 8 9 जा ऐसे कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले न्यूमरेटर की आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये एडिशन लेने के बाद आपको आगे जाना। ओके, गेटिंग दिस वन, समझ में आ रही है आपको? ठीक है। So if you will take its addition will be something 609, so you just have to divide it by 8. So that division का आंसर क्या रहता है, चेक करो। 609 divided by 8. So सबसे पहले 8 7 are 56, remainder will be 4. Then again we'll consider this 9 here. 8 6 are 48 and remainder will be 1. So for that remainder again you will give your decimal point so that we can consider 10 here. So 10 ones are then 2 will be there. Answer will be 2 5. So we can say that its mean will be 76.125. Okay. What we are considering? इसका हमने फॉर्मूला क्या देखा है? Mean is nothing but mean is also denoted as an x bar, which is given as sum of all observations divided by total number of observations. अब ये क्वेश्चन कैसा है देखो, थोड़ा सा आपको ट्विस्टेड वे से दिया है। We have already mean of 7 numbers, मतलब x bar का वैल्यू पहले से आपके पास है। If the 6 numbers are 65, 70, 68, 59, 73 and 55, then you have to find the 7th number. आपको 7th number क्या रहेगा ये find out करना है। We have only one formula for mean, so using that mean आप कर सकते हो। Suppose that 7th number जो unknown number आपके पास है उसे हम consider करते हैं as a x. Then what is the given case? Mean of 7 number is 63. But mean का फॉर्मूला क्या था देखो, mean is nothing but numerator पे आप consider करने वाले थे sum of all observations and will divide it by total number of observation. Mean is nothing but sum of all observation. तो all मतलब अगर आप बोल रहे हो mean of 7 numbers के बारे में, उसमें से तो 6 नंबर पहले से आपके पास है, आपके पास सिर्फ x का वैल्यू नहीं था। तो अगर आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कंसीडर करना है तो आप क्या कर सकते हो, 65 70 68 एंड सो ऑन प्लस करोगे सिर्फ आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो अगर वो बोल रहे हैं दैट मीन ऑफ 7 नंबर से, इट मींस दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 7 रहेंगे, जो आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। ये 6 नंबर प्लस 7th नंबर आप कंसीडर करने वाले हो x divided by total numbers which is nothing but 7 and the mean is given as 63. तो अगर आप ये कैलकुलेट करते हो, the sum of the known 6 observations will be 390. So we can say that 390 plus x equals to 63 into 7. 63 into 7. Cross multiplication consider करोगे. So you will get 390 plus x as a 441. Hence value of x will be 441 minus 390, which is nothing but 51. समझ में आया? थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन क्या था, इस केस में डायरेक्टली आपको मीन का वैल्यू क्या रहेगा ये प्रोवाइड किया था एंड आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने थे जो आपको मिसिंग टर्म रहेगा उसके लिए। डन? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो द 7th term will be 51. Now Srikanth reads the following number of pages of a book daily, then find the mean. अब जो ही आपको total number of pages मिलेगा बहुत ज्यादा है। The second is that I can see 34 is again repeated for almost 4 to 5 times. मतलब जितने भी आपके पास number of pages के मिल रहे थे, ये कई बार repeat होने वाला पेज था।
तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट असेंडिंग डेटा, डिसेंडिंग डेटा, या फिर सब नंबर्स कंसीडर करोगे, उसका एडिशन कंसीडर करोगे, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर आपका बन जाएगा, राइट। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन से दैट अगर मीन आपको फाइंड आउट करना है, तो ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस थे उसके लिए सबसे पहले आप टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। सो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा था वो वाला, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड करो एंड वो सबसे पहले लिखो। आई कैन से दैट द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज डिनाइंड हियर। नेक्स्ट आपको मिलेगा टैली मार्क्स, मतलब कितने टाइम के लिए मिल रहा था वो वाला केस। उसके बाद जो टैली मार्क्स आपको मिल रहे थे, बेस्ड ऑन इट आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, एंड जो एडिशनल कॉलम आपको अभी मिल रहा है, इट इज नथिंग बट xi into fi, बिकॉज इतने टाइम के लिए आपको xi की वैल्यू मिलने वाली थी, लाइक दिस। ओके, सी आई कैन से दैट जो भी आपको मिल रहा था, स्मॉलेस्ट वैल्यू 29, देन 29 के बाद जस्ट नंबर आपको मिलेगा 34, then 35 is there, 36 is there, I cannot see 37, so 37 नहीं रहेगा, but 38 है आपके पास, then 40 is there, again 41 is there, so 43 and last one is 51। हमने क्या किया समझ में आ गया आपको, जो आपके पास नंबर ऑफ पेजेस आपको दिए थे, वो स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक आपने सिर्फ उस ऑर्डर में कंसीडर किए, कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये जो के पास ऑब्जर्वेशंस थे वो किए थे कंसीडर। अब चेक करो 29 के लिए, या फिर आप 34 से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो आई कैन सी दैट 29 इज ओनली टाइम देयर। अब 34 के लिए चेक करो, 34 यहाँ मिलेगा, देन सेकेंड, थर्ड, then fourth, fifth, sixth, and seventh. So there are 7 times 34. तो अगर आप टैली मार्क्स कंसिडर करते हो, तो 7 टाइम्स के लिए आप कंसिडर करोगे, that is corresponding I will be 7 here. Next आप चेक करो 35 के लिए, 35 1 2 then again 3 then 4 5 and 6, 6 टाइम्स के लिए आपको 35 मिलने वाला था। देन 36 अगर आप चेक करते हो, देन 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। अगेन 36 is for 6 times, सॉरी 7 टाइम्स, 36 is for 7। 38 अगर आप चेक करते हो, तो फर्स्ट लाइन में तो 38 है नहीं, सेकेंड लाइन में आपको 1 2 3 टाइम्स के लिए मिल रहा है। सो 38 के लिए टैली मार्क्स आपको मिलेंगे ऐसे, गेटिंग दिस वन। जितने पास नंबर्स आपके पास है वो सिर्फ आप प्लॉट करने वाले हो, दैट्स इट। 40 is for only one time, 41 is only for one time, 43 is only for one time, and 51 आपको मिलेगा one time। तो ये जो आपको मिल रहा था, लास्ट कॉलम पे आप क्या कंसीडर करने वाले हो, xi into fi। टैली मार्क लेने के बाद कितने टाइम की फ्रीक्वेंसी मिलेगा ये आपने चेक किया, तो लास्ट कॉलम इज फॉर fi into xi, मतलब xi into fi, करस्पॉन्डिंग xi into fi आप कंसीडर करोगे। फर्स्ट रो के लिए xi की वैल्यू into फर्स्ट रो के लिए fi की वैल्यू, दैट इज x1 into f1। यहाँ पे आपको मिलेगा 21, 29 1 is 29। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 34 into 7, so 34 into 7 का कुछ आपको वैल्यू मिलेगा 238। Are you getting this one? What we have to do here? 35 into 6 210, 36 into 7 कुछ आपको वैल्यू मिलेगा 252। नेक्स्ट वन इज 38 into 5 जो आपको मिलेगा 190। देन ये तो इजी है, 41 will be 40, 41 will be 41, 43 ones are, and the last one is 51 times। समझ में आ रहा है? एडिशनल पार्ट अपने क्या किया, अब तक हम सिर्फ समेशन एक्सट्रा वाले थे, हमने यहाँ पे सेम ही केस किया, बट आपने ये चेक किया कि 34 आपको 7 टाइम्स के लिए मिलने वाला था। सो 7 टाइम 34 34 34, ये जो आप इसलिए आपका आंसर रहेगा, विच इज सेम एज 34 into 7। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, या फिर आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस टेबुलर फॉर्म, आपको समेशन ऑफ fi into xi फॉर्म करना है, बिकॉज न्यूमरेटर पे क्या रहता है आपका
sum of all observation. So total of all frequencies will be this. टोटल डेज कितने आपको मिल रहे थे इसके लिए समेशन ऑफ एफ आपने कंसीडर किया 1 + 7 + 6 + 7 + 5 +1 + 1 so this will give you answer as a 30 and also we have to consider total of summation fix मतलब ये जो लास्ट टू आपको कॉलम मिल रहे थे एफ का भी टोटल फाइंड आउट करोगे एंड एग्जैक्ट समेशन एफ का भी आप टोटल फाइंड आउट करोगे. So what is the formula of mean? Mean is nothing but sum of all observation divided by number of observation. So is equal to summation of fy is nothing but sum of all observation and number of observation is same as summation of frequencies that is summation fy. So we can say that here x bar is equal to summation fy upon summation fy. So 1094 upon 30. This will be your answer. So you can just divide it by 3 okay? Basically आपको आंसर मिल जाएगा. Again 36 double to 180, remainder 40. We'll put decimal point here so that you consider 0. 34 will be 120, remainder will be 20. Again you can take one more time 0, so there will be 6. Okay, getting this one. So ये आप ट्रिक मिलेगा ना इसके बाद. We can say that mean of this data can be written as 36.5. Mean of this data can be written as 36.5. Okay, getting this one clear हो गया है सबको. Find out आ रहा है. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा सैटरडे पे उस टाइम पे अगेन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस मीन. फाइन. सो जैसे अभी हमने सिर्फ ये अनग्रुप डेटा के लिए किया है मतलब एक्सरे के केस में अगर आपके पास इंटरवल मिलता तो कैसे कैलकुलेट करना होता ये हम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.